And they're showing an experiment. Here you have to see कि कैसे मेटल एक्सपैंड करती है. So take a rod, एक साइड उसकी फिक्स कर दो, एक साइड let it be a free hand and start burning it. अब burn करो, of course metal will expand. तो expand के कारण होगा it will touch this pointer and pointer will start moving and it gives some reading. So this will tell कि अगर ये expand नहीं करता, if by chance it will not expand तो pointer का हिलना ही नहीं था because there is a gap between them. Pointer will not move. But because the metal is expanding, that's why the pointer will move and it will show some reading. So the pointer start moving due to the expansion of metal rod and it will elongate and pushes the pointer on the scale. So metal rod expand on heating. Same another option, they have fixed a length and this length is being contact with this. Now start heating this up. Of course its length will increase. अब length increase करेगी मतलब this end will not will come at the contact of fixed contact. So it will expand. It is expanding. So it is not contacting this point. It means it is expanding. And the unit of this coefficient will be ppm per degree Celsius scale. So alpha coefficient, alpha means it's a linear expansion. Coefficient of linear expansion will come, some value will come depending upon the material. So they have taken the material, they have given it brass and iron. So when you compare both brass and iron, see here brass and here is iron. Who will expand more? Of course brass. Brass will expand more as compared to iron. So it means upper line will expand more and lower line will expand less. So they will expand, brass will expand, iron will expand. Expand के कारण क्या होगा? Length will change. So upper one will be more bending, मतलब ऊपर वाले की ज़्यादा expansion होगी as compared to the lower one. Now they are talking about aerial expansion. Aerial मतलब when you talk about area. And superficial, any word you can use. So area मतलब you are talking about length into breadth, means your length is changing and breadth is changing, means you are talking about any rectangle one. So a thin sheet or thin plate, length and breadth both increase on heating. So it depend upon the area. So we talk about aerial expansion and superficial expansion. So here also it will depend upon all the three factors. First of all the material. Every material will have the different expansion. So जिस material का ज़्यादा coefficient होगा वो ज़्यादा expand करेगा, like how it was of alpha. So mean जिसका बीटा की value ज़्यादा होगी it will expand more. Same goes, अगर ज़्यादा temperature दोगे ज़्यादा expand करेगा, कम temperature दोगे कम expand करेगा. And length, जिसका length ज़्यादा होगा it will expand more. Means जिसका area ज़्यादा होगा वो ज़्यादा expand करेगा, जिसका area कम होगा that will expand less. Same compared to your linear one. It means aluminium will expand more as compared to inward. So aluminium will expand more, and this expansion you can see in only in liquid and gas. And then as volume means length, breadth and height. All the three will change. This expansion is known as volume expansion or cubical expansion. Because cube में length, breadth, height की बात में करते, there is 3D shape. So here also material पे depend करेगा which material will have more coefficient will expand more. So here it is like aluminium will expand more, copper will expand more, brass will more as compared to your diamond. So diamond will expand less. Same goes for your temperature. If temperature is rising, so it will be having a more volumetric expansion. And same original volume, जिसकी volume ज़्यादा होगी उसमें ज़्यादा expansion होगी. And same goes Vt by minus V0 upon original one is equal to gamma T. So all will have the same formulas, and then you have some comparison between alpha, beta and gamma, and alpha, beta and gamma is 1:2:3. Why? First one is only length, second one is length into breadth, and third one is length into breadth into height. That why this is 1, 2 and 3. So alpha, beta, gamma is 1:2:3. Then they are showing demonstration of cubical expansion. Cube की expansion देनी है. So I've taken some cube, sphere ली है. अब sphere को now it is crossing this ring. Crossing this ring मतलब इसके shape से आराम से इस ring से निकल सकती है. अब इसको burn करनी शुरू होगा. Of course इसका size बढ़ेगा. Means इसका size increase करेगा. Size increase करेगा means it will not cross out this ring. फंस जाएगी, क्रॉस नहीं कर पाएगी.
सो ऑन हीटिंग द बॉल एक्सपैंड लार्जर देन द रिंग, एंड ऑन कूलिंग जब इस बॉल को छोड़ दोगे थोड़ी देर के लिए अपने आप ठंडी हो जाएगी, ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी, इट विल क्रॉस दिस अप. तो दिस सम एप्लीकेशन आई हैव ऑलरेडी टॉल्ड. रेलवे ट्रैक में गैप क्यों छोड़े होते हैं, ताकि जब उसको एक्सपैंड करना है तो आराम से एक्सपैंड कर सके. अगर ये एक्सपैंड नहीं छोड़ोगे तो देयर मिट बी अ पॉसिबिलिटी कि एक्सीडेंट हो सके. अब ये चेंज कैसे कर रहा है, लीनियरली, सो इसमें लीनियर एक्सपेंशन है. सेम इलेक्ट्रिक वायर्स आपकी साग छोड़ी होती है, ढीली छोड़ी होती है. अगर आप नोटिस करो तो वो क्यों छोड़ी होती है, बिकॉज द वायर हैज़ टू एक्सपैंड. अगर ये बाई चांस इफ़ यू हैव फिक्स दिस पॉइंट, ये दोनों साइड तुम फिक्स कर दो, नाउ इट नीड सम स्पेस टू एक्सपैंड. अब इसको स्पेस नहीं मिल रही है, इट इज़ नॉट गेटिंग सम स्पेस बिकॉज द बोथ हैंड इज फिक्स, तो इट मीन्स इट विल ब्रेक अप. मतलब ये ब्रेक डाउन हो जाएगी, टूट जाएगी, जिस मीन्स कि देयर विल बी अ लॉस. आपको सारी वायर्स फिर से चेंज करनी पड़ेंगी. दैट वर्क कांट बी डन. दैट्स वाई इट इज़ ऑलवेज लूज, नहीं सैगिंग छोड़ी होती ताकि वायर आराम से एक्सपैंड कर सके, एंड द वर्क इज़ ईजियर फॉर दैम. दिस बोथ एग्जाम्पल आई हैव टोल्ड यू राइट नाउ ओनली. वायर रिम चढ़ानी होती है, ऊपर क्या करते हो, सबसे सेम साइज़ का लेते हो, इसे एक्सपैंड करते हो हीट कर कर, इसके ऊपर रख देते हो, उसी टाइम इमीडिएटली इस पर ठंडा पानी डाल दो तो इसके साथ कॉन्टैक्ट में रहेगी, दैट विल नॉट कम आउट. एंड सेम फॉर ब्रिज का एक एंड फिक्स किया जाता है, दूसरा रोलर्स पे, बिकॉज इट इज़ एन आयरन, इट विल एक्सपैंड. व्हेन एक्सपैंड इट नीड्स सम स्पेस टू मूव, सो रोलर्स विल हेल्प इट टू मूव. सेम इन योर होम यू हैव सीन कि किसी का ढक्कन नहीं खुल रहा था, एंड योर मदर टेल यू दैट कीप इट इन द वार्म वाटर, सो वो क्या हो जाएगा, इट विल एक्सपैंड. सो एक्सपैंड मीन्स वो आराम से खुल जाएगा. सो ऑल्सो दे हैव सेवन lid of the tightly closed container, you can open it up. Same for pendulum. pendulum का इनवर का क्यों बनाया होता है, because it will not expand. So it will not expand means वो expand ही नहीं करेगा तो तुम्हें टाइमिंग गलत नहीं दे सकता. So it is made up of alloy and nickel. Remember this. It is made up of what? alloy क्या होता है, मिक्सचर ऑफ मेटल्स, 2-3 मेटल्स मिक्स करके alloy बनाती हैं. So it has have negligible coefficient. उसका coefficient है ही नहीं है, so it will not expand. सेम ग्लास वे यूज फॉर हीटिंग, कि हम हमेशा ग्लास क्यों यूज़ करते हैं, ग्लासेस एक्सपैंड बहुत कम करती हैं, वेरी लेस इट एक्सपैंड. यू कैन सी ग्लासेस सबसे लास्ट में आ रही हैं. ग्लासेस आर कमिंग एट द लास्ट, मीन्स दे विल एक्सपैंड वेरी लेस. दैट्स वाई दे आर कैप्ट. कभी नोटिस क्या हैव यू सीन इन विच अर्लियर होम्स जिसके पुराने हैं, टाइल्स, यू हैव अ टाइल्स एट द फ्लोर, आपके टाइल्स के उसके बीच में एक लाइन छोड़ी हुई है जो जिसके अंदर कांच के छोटे छोटे पीसेस डाले हुए हैं. इन माई होम आई हैव सच अ फ्लोर, जिसके अंदर मतलब 2 टाइल्स के बीच में या इसके बीच में कांच के टुकड़े डाले हुए हैं. ये क्यों डाले हुए हैं, बिकॉज दिस ग्लास विल नॉट एक्सपैंड. जब एक्सपैंड नहीं करेगा मतलब फ्लोर का साइज़ हीट में होने के कारण इंक्रीज नहीं करेगा. सो टाइल के पास एक्सपेंशन करने का कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है. दैट्स व्हाई उन्होंने कांच के डाले होते हैं. So the glass will not break up. Breaking of a thick glass. A thick glass tumbler cracks if hot water. कभी नोटिस किया है, जब तुम्हारी चाय डालते हो, बहुत गरम गरम चाय डाल दो, ग्लास में क्रैक आ जाता है, it will break up. वो क्यों होता है, बिकॉज जो मोटे ग्लासेस होते हैं क्या होता है, जैसे चाय डालोगे अंदर का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज, जबकि बाहर का जो टेम्परेचर है, ग्लास बाहर से ठंडा था, सो दिस चेंज इन टेम्परेचर विल कॉज इट टू ब्रेक. So whenever you pour a hot water in a tumbler, the inside become a hotter while outside remain a less temperature. This result in uneven expansion. कि अंदर वाला expand कर जाएगा हीट के आते हैं कॉन्टैक्ट में, पर आउटसाइड इतनी हीट नहीं है तो it will not expand. So difference in expansion will lead to the cracking of your tumbler. Then is reverting. Reverting क्या होता है, एक एंड को दूसरे एंड से जोड़ने के लिए क्या यूज़ करते हैं, एक आयरन. इस आयरन को हीट करो, हीट करने के कारण क्या हो जाएगा, आसानी से इसके बीच से क्रॉस आउट हो जाएगा और ये इसके साथ फिक्स हो जाएगा. सो रिवर्टिंग एक वो मेथड है जिसे हम फिक्स कर सकते हैं जस्ट बिकॉज बाय हीटिंग. सो जॉइनिंग 2 मेटल शीट बाय रिवर्टिंग. अ रिवर्ट इज अ नेल विच हैज़ अ कैप, ऊपर एक कैप है, एंड लाइक अ स्ट्रक्चर विद वन हैविंग अ कैप एंड अदर एंड इज फ्लैट. सो दिस इज फ्लैट एंड दिस इज अ कैप. प्लेट इज प्लेस अबव द अदर एंड होल्ड्स अ ड्रिल. इन दोनों प्लेटों को होल्ड करके ड्रिल किया जाता है. देन द रिवर्टिंग ऑफ द हेड इज रेड हॉट एंड इंसर्टेड इन द होल. अब इसको गर्म किया जाता है और इसके अंदर इंसर्ट किया जाता है. द रिवर सॉफ्टन बाय हीटिंग एंड देन हैमर. और जब थोड़ी देर के बाद ये ठंडा हो जाता है, ये अपने आप इसके साथ फिक्स हो जाता है, नॉट विल नॉट कम आउट.
सो द राइवट सॉफ्टन बाय हीटिंग एंड देन हैमर्ड। जब ये राइवट को हीट किया जाता है ये सॉफ्ट हो जाता है और इसको हैमर करके इसके अंदर डाल दिया जाता है और ये दोनों मेटल्स को ज्वाइन करते हैं। सो राइवटिंग इज डन टू ज्वाइन टू मेटल बॉक्सेस। कोई भी मेटल बॉक्सेस को ज्वाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। Already talked a lot about the solid expansion. Let's talk about the liquid expansion. So how you will tell कि liquid expand करता on heating. I've already told पर exceptional case क्या है कि 4 डिग्री सेल्सियस पे it will on cooling it will expand. That's only one exceptional case. Else वैसे expand करता है। तो ये प्रूफ करने के लिए इन्होंने क्या किया है, they have taken the water and ink, पानी का कोई लेवल, and then they have poured a ink एंड दे हैव पुट अ स्ट्रॉ। और स्ट्रॉ से क्या किया हुआ है, स्ट्रॉ से थ्रू पानी ऊपर सक करता है, यू नो ऑलरेडी। अब इसके ऊपर इसकी ओपनिंग जो है वो क्लोज कर दी है विद हेल्प ऑफ अ वैक्स। वैक्स क्या करेगा, कोई भी वाटर वेपर के थ्रू पानी को एस्केप करने नहीं देगा। सो स्ट्रॉ क्या करेगा, नाउ यू स्टार्ट हीटिंग इट अप। हीटिंग करने के कारण क्या होगा, वाटर एक्सपैंड करेगा क्या कि पानी इस पाइप के थ्रू ऊपर एक्सपैंड करने शुरू हो जाएगा और पानी का जो पानी है वो स्ट्रॉ के थ्रू इस लेवल तक पहुंच जाएगा। अब उसको तो एस्केप करना है ना, तो इट विल इंक्रीज, मतलब ऊपर लेवल इंक्रीज करने शुरू हो जाएगा, मतलब पानी अब इसके अंदर जाने शुरू हो जाएगा। वाटर विल एक्सपैंड। सो द हीटिंग द वाटर इंक्रीजिंग अ बर्नर, सो द वाटर इज सीम राइजिंग इन द स्ट्रॉ, कि पानी स्ट्रॉ के थ्रू ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। एज द वाटर इज हीटेड द लेवल ऑफ वाटर इन द स्ट्रॉ राइजेस, इट शो दैट वाटर एक्सपैंड ऑन हीटिंग। मतलब पहले स्ट्रॉ में पानी यहाँ तक था, after it burning it start moving, rising it up, it show that water expand. In 7th class they have used a beaker, in that they have kept one rod और rod को ऊपर से ऐसे बंद किया हुआ है कि escape ना कर सके, and they have marked one water level. This means पानी यहाँ था and they start burning it up. Burning करेंगे, they will start burning. अब burning से क्या होगा, water will expand और you will see slowly the water mark will come है, मतलब पानी का level increase कर जाएगा. You can see the difference in them. But you have closed this rod which you have used here. तो rod बंद होने के कारण क्या होगा, पानी escape नहीं करेगा through a water vapor. So it will expand and some comes to some level. This show that water expand on heating. Same goes for gas. गैस के लिए कैसे प्रूव कर सकते हो गैस एक्सपैंड करती है। सेम टेक अ बीकर, कोई भी बीकर ले लो और उसके नेक पर टाई अ बलून, बलून को टाई कर दो एंड स्टार्ट बर्निंग दिस अप। अब बर्निंग के क्या और कारण क्या होगा, इसकी खाली है, बॉटल इज़ एम्प्टी। एम्प्टी क्या होगा, इसमें अंदर जो गैस होगी इट स्टार्ट एक्सपैंडिंग। तो जो एक्सपैंड करने के कारण क्या होगा, आफ्टर सम टाइम दिस बलून विल इन्फ्लेमेट। इन्फ्लेमेट मतलब फूल जाएगा खुद ब खुद विदाउट योर वर्क। इट मीन्स जो गैस एक्सपैंड की थी वो सारी बलून के अंदर चलेगी एंड इट हैज़ फिल्ड द बलून। और थोड़ी देर के बाद रिमूव द बर्नर, फिर रिमूव द बर्नर यू सी बलून अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। दिस प्रूव दैट गैस ऑल्सो एक्सपैंड ऑन हीटिंग। सो हेयर दे हैव टोल्ड अबाउट कि नेचर क्या है क्यूबिकल एक्सपेंशन का, सेम। जिस लिक्विड की वॉल्यूम सेम होगा, मतलब वॉल्यूम सेम है पर मटेरियल डिफरेंट है, मतलब नेचर लिक्विड का डिफरेंट है। मान लो कहीं वाटर लिया है, केरोसिन लिया है, अल्कोहल लिया है, ऑफ कोर्स दे विल एक्सपैंड एट डिफरेंट लेवल। अब अगर टेम्परेचर बढ़ा हो गया वैसे क्यूबिकल एक्सपेंशन होगा। सेम इफ़ यू कंपेयर हैविंग अ लॉन्गर वन, सो इट मीन्स अगर आपकी इनिशियल वॉल्यूम ज़्यादा होगी तो ज़्यादा हीट अप करेगा, वॉल्यूम कम होगी तो वो कम हीट करेगा। सो हेयर वी विल यूज़ गामा एज फॉर एक्सपेंशन। सो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया है। दे हैव टेकन वन बॉइलिंग वाटर के अंदर 4 बीकर्स डाले हैं एंड 4 डिफरेंट लिक्विड्स, एक में पानी, एक में केरोसिन, एक में अल्कोहल, एक में बेंजीन। एंड दे हैव टेकन सम मार्क्ड रॉड्स कि अगर लेवल इंक्रीज़ करेगा दे विल गेट टू नो कि मार्क किस में इंक्रीज़ किया है। सो व्हेन दे कीप दिस ऑल द रॉड इन हॉट वाटर, तो हॉट वाटर के कारण हीटिंग होगी, हीटिंग के कारण क्या होगा, वाटर विल एक्सपैंड। जब ये एक्सपैंड करेगा तो यू विल सी द बेंजीन विल एक्सपैंड द मोस्ट। वाई? बिकॉज बेंजीन हैव द कोएफिशिएंट मोर, सो मीन्स बेंजीन विल एक्सपैंड मोर देन अल्कोहल, देन ऑयल, देन मर्क्यूरी। सो द लेवल इज डिक्रीजिंग हेयर। सो बेंजीन विल एक्सपैंड मोर, so benzene will expand more as compared to alcohol and kerosene, and the water will expand least. So it's a equal volume same डाले हैं पर liquid हमने different डाले हैं. They show that they have a different volume expansion. So इसमें एक application they have used mercury, कि हम thermometer में mercury ही क्यों डालते हैं. So they are saying we always use a mercury in a
थर्मामीटर, वाई? बिकॉज इट इज़ अ शाइनी लिक्विड। तुम्हें पता चल जाएगा लेवल क्या है तुम्हारे बुखार का। इट्स लेवल कैन बी इजली सीन, तुम आसानी से देख सकते हो मर्कुरी का लेवल। एंड इट एक्सपैंड यूनिफॉर्मली, बराबर ही एक्सपैंड करती है, कम ज़्यादा नहीं करती, कहीं कभी कुछ टेम्परेचर हुआ तो कुछ चेंज हो जाएगा। इट विल एक्सपैंड यूनिफॉर्मली एंड हमें टेम्परेचर बिल्कुल एक्यूरेट देती है, एक्यूरेट टेम्परेचर देगी। एंड इट विल नेवर स्टिक टू द ग्लास, ग्लासेस के साथ स्टिक नहीं करती है, जैसे एक्सपैंड करेगी वापस कॉन्ट्रैक्ट भी कर जाएगी, तो आसपास के ग्लास के साथ चिपकती नहीं है। सो यू विल गेट एक्यूरेट टेम्परेचर। सो मर्कुरी एक्सपैंड कैसे एक्सपैंड करती है? जब हमारा बॉडी का हीट टेम्परेचर लेती है, टेम्परेचर लेगी बॉडी का अगर टेम्परेचर होगा वो टेम्परेचर वो नोट करवा देती है, क्योंकि वो एक्सपैंड किससे करते हैं? हमारे बॉडी के टेम्परेचर के साथ। और जब इसको कोल्ड वाटर के नीचे रखो वो अपने आप कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। एंड वाटर शो सम लॉनेस एट 4 डिग्री सेल्सियस। डोनेट 4 डिग्री सेल्सियस एक्सपैंड करता ऑन, वैसे वो एक्सपैंड करता है बट इट विल एक्सपैंड ऑन कूलिंग। सो कूलिंग के टाइम हमेशा वाटर कॉन्ट्रैक्ट करता है, पर 4 डिग्री सेल्सियस 4 डिग्री से ज़्यादा में इट स्टार्ट हीटिंग इट अप। दिस इज़ अनॉर्मलस बिहेवियर ऑफ वाटर। इस रीज़न के कारण तो हमारे जानवर, द वाटर लिक्विड एक्वस एनिमल्स कैन सर्वाइव इन अ कोल्ड एरिया। थर्मल एक्सपेंशन इन गैसेस, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि बलून टाई कर दो तो बलून विल एक्सपैंड ऑन हीटिंग, एंड जैसे इस हीटर बर्नर को रिमूव कर दो इट विल कम टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। सो बाय दिस चैप्टर गेट ओवर।